Yes, good afternoon to all students. Good afternoon, ma'am. Good As afternoon, ma'am. as you are remaining Good present in afternoon, the class. ma'am. Okay. Now I am going to share slides. Please listen carefully. Are you able to visible? Yes, ma'am. Okay. So what is natural language processing? Right. In this lecture, we will discuss about introduction, components and processes, and what is the conclusion. First is introduction. Introduction part covers what is natural language processing, why NLP and how it used for machines, why NLP, what is history of NLP. Okay, so what is natural language processing? It is basically a model or a machine or a robot which convert natural language, means your English, Germany, Spanish, which convert natural language into machine language and answer that language into human language. Basically, it is a model or a computer machine which communicate with human being and answer them in human language. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना और वो आंसर देता है आपकी लैंग्वेज में. ठीक है, मीन्स इट प्रोसेस इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट. ठीक है, also known as computational linguistics, human language technology, natural language engineering. And next comes to NLP for machines. NLP machines के लिए कैसे यूज करता है, कैसे काम करता है? Means first of all, machine will analyze your problem, understand your problem, interpret that problem and reply or resolve your problem. After that, it will answer. Suppose when you go to the Google, you search something, it will answer multiple solutions for you. So what it does? It does analyze, understand and generate human languages just like human do. जैसे एक इंसान काम करता है वैसे ही NLP मशीन काम करती है. Next is applying computational techniques to language domain. इसका क्या मतलब है कि computational techniques अप्लाई करता है. सपोज some person knows only पंजाबी, उसको इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, और किसी को इंग्लिश आती है पंजाबी नहीं आती है. There are Google translator which convert one language into another language. To explain linguistic theories, to use the theories to build system that can be of social use. इसका क्या मतलब है कि हम linguistic theories यूज करते हैं. अब सपोज करो हम कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं. हाँ जी, लिंग्विस्टिक क्या होता है? लिंग्विस्टिक्स मीन्स लॉजिकली. लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है बताती हूँ मैं, एग्जांपल बताती हूँ. अब जैसे मैं बोली जा रही हूँ, आप कोई आंसर नहीं दे रहे, दैट इज वन वे कम्युनिकेशन, राइट. जब आप भी आंसर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, टू वे कम्युनिकेशन. तो उसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक थ्योरीज. ठीक है, मैंने जो बोला उसको आपने पहले एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया, समझा, अंडरस्टैंड किया, उसके बाद आंसर जनरेट किया. ठीक है, started off as a branch of artificial intelligence. All of you, it is basically a branch of artificial intelligence. Borrows from linguistics, psychology, cognitive science, and statistics. These are totally basic some parts of your NLP. It makes computer which learn language rather than we learn theories. अब आता है why NLP.
मतलब हम why we study NLP? Is there any student who can answer this question? Why we study NLP? हम क्यों पढ़ते हैं? Why we study NLP? मैम Yes. एनएलपी इसलिए पढ़ते हैं ताकि मशीन को हमारी लैंग्वेज समझ में आ जाए और हम इंटरेक्ट कर सके मशीन के साथ। Yes, absolutely correct. We study NLP because of ambiguity. Because as we all have so many data, उस डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हमें किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है कि वो हमें आंसर कर सके। मींस देयर आर टू पार्ट्स, ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ वो अंडरस्टैंड करे, सेकंड वो जनरेट करे। अंडरस्टैंड में आ जाता है बेटा लेक्सिकल वर्ड प्लानिंग, सिंथेटिकल पार्सिंग, रेफरेंशियल, और जनरेशन में आ जाता है टेक्स्ट को कैसे प्लान करना है, कैसे सेंटेंस प्लान करना है और कैसे टेक्स्ट को रियलाइज करना है। ठीक है, एम्बिग्यूटी मींस देयर आर व्हेन वी हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ वन थिंग। जब आप कोई वर्ड टाइप करते हो गूगल में तो आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस प्रोवाइड हो जाते हैं। सो व्हाट ही किसने बोला था अभी आंसर? हु गिव द आंसर? मैम शौर्यम। शौर्यम, क्लैप फॉर हिम। उसके लिए ये आंसर बिल्कुल सही था जो उसने बोला। ठीक है, बस बस बस। नेक्स्ट कम्स टू हिस्ट्री ऑफ एनएलपी। मतलब कैसे, हाउ इट बिकम्स, हाउ इट फाउंड्स। First, it was a machine and intelligence, as we already learned about artificial intelligence. In 1950, Alan Turing, who developed the automated machines. It is the biggest scientist who maintained and create or develop your automated all machines, right? So it gives beneficial and successful natural language system, which was developed in 1960. That's all, okay? Now, next comes to components and processes. First of all, we learn components of NLP, then linguistics and language, steps of NLP. Last, we will go to read techniques and methods, right? First of all, comes to components of NLP. As we already read, there are two components of NLP. Basically, there are two components. First is natural language understanding. First of all, Hello. keep silence. First I convey, then you ask me. सबसे पहले आता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर आता है बेटा लेक्सिकल वर्ड लेवल, सिंथेटिकल पार्सिंग, रेफरेंशियल एनालिसिस। ठीक है, I will tell all these three parts in detail in next slide, okay? इसमें क्या होता है बेसिकली आपको बता देती हूँ। लेक्सिकल में क्या होता है, वर्ड चेकिंग होती है, उसका सिंटेक्स बनता है, सेंटेंसेस बनते हैं, टेकिंग सम स्पोकन टाइप सेंटेंस एंड वर्किंग आउट व्हाट इट मींस। ठीक है, ये क्या करता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को इकट्ठा करता है, उसको चेक करता है कि ये सही है कि गलत है, और नेचुरल लैंग्वेज क्या जनरेशन क्या करता है, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट कर देता है। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में आता है आपका टेक्स्ट प्लानिंग, जो नॉलेज रिप्रेजेंट करता है, आपका सिंटैक्स प्लानिंग, सिंटैक्स प्लानिंग होती है, लास्ट से टेक्स्ट रियलाइज होता है, मींस टेकिंग सम फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन of what you want to say and working out a way to express it is a natural language. ठीक है, इसका मतलब ये है कंप्यूटर क्या कर रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो भी आप बोल रहे हो उसको गूगल सर्च में टाइप कर रहे हो, वो पहले उसको एनालाइज कर रहा है। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन क्या कर रहा है, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्ट्रक्चर्ड डेटा में कन्वर्ट कर रहा है, अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपने टाइप किया उससे रेलेवेंट आपको आंसर दे रहा है जो ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ एनएलपी, यही चल रहा है अभी। सबसे पहले क्या था हमारे पास, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, मैपिंग द गिवन इनपुट इन द नेचुरल लैंग्वेज इनटू अ यूजफुल रिप्रेजेंटेशन। मींस हम इनपुट दे रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, कोई इंग्लिश में टाइप कर रहा है, कोई हिंदी में कर रहा है, कोई पंजाबी में, कोई स्पेनिश, जिसको जो लैंग्वेज आ रही है वो कंप्यूटर को टाइप करके दे रहा है, राइट। अब आता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनालिसिस रिक्वायर्ड। इसके लिए हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनालिसिस की जरूरत होती है। फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजिकल लॉजिकल एनालिसिस, सिंटैक्टिक एनालिसिस, देन सेमेंटिक एनालिसिस, लास्ट इज डिस्क्लोजर एनालिसिस। ओके, उसका मतलब क्या होता है, आप पढ़ दिए, मतलब क्या let you know these are the basically steps of NLP, how NLP works in computer। ठीक है, ये अभी मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर रही हूँ डिटेल में। मैम एनएलपी के जनरेशन सबको पता हो? हाँ जी बच्चे एक मिनट रुक जाओ। नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन सबको पता लग गया, जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है ह्यूमन लैंग्वेज की फॉर्म में। ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ सिंथेसिस रिक्वायर्ड, डीप प्लानिंग, सिंथेटिक जनरेशन। अब आता है नेक्स्ट, linguistic and language। Linguistic basically the science of language which sounds to refers to phonology, word text, sentence, meaning to semantics and this one. Now next comes to steps of NLP which comes under the, किसके अंदर आते हैं, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन। मैम पिछले वाला क्या था वो समझ में नहीं आया, आप क्या पढ़ दिए वो लिंग्विस्टिक के बारे में, इसे द साइंस ऑफ लैंग्वेज। आप तो पिछले कुछ और बताए थे कि अपने मतलब जो लॉजिक दे रहा है लॉजिक के द्वारा उसको समझना। साइंस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक का मतलब यही होता है। साइंस ऑफ लैंग्वेज मतलब हम 1-to-1 वन वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये 2 वे कम्युनिकेशन। मैं सपोज करो गूगल में आपके आजकल साउंड भी चलती है ना, आपको टाइप नहीं करना, आप स्पीक करो तो आपकी स्पीच को करता है, पहले एनालाइज करता है, इंटरप्रिटेट करता है और उस सिंटेक्स को आपकी लैंग्वेज में आंसर करता है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं, जिसको 2 वे कम्युनिकेशन कहते हैं। ये ना डिटेल में पढ़ना है हमने आगे, ठीक है। अब आता है ये स्टेप्स ऑफ एनएलपी, ठीक है। एनएलपी ये स्टेप्स किसके अंडर आते हैं, एनएलयू के अंडर आते हैं या एनएलजी के अंडर आते हैं? हाँ जी, स्टेप्स किसके अंडर आ रहे हैं, एनएलयू या एनएलजी? एनएलयू। मैंने अभी बताया था नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, ये किसके अंडर आ रहे हैं बेटा? एनएलयू के अंदर आ रहे हैं। Good, very good. These are the 5 steps of NLP which we will study one by one, step one by one. First comes to morphological and lexical analysis. Morphological और lexical का मतलब एक ही है। Morpho means when we break down the sentence into words, ठीक है। और लेक्सिकल का मतलब होता है उन वर्ड्स को चेक करना कि वो वर्ड सही हैं या गलत है। सपोज करो, अच्छा तुमने तो कंपाइलर डिजाइन भी नहीं पढ़ा ना अभी, अब मैं बताती हूँ उसका। लेक्सिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि एक एक वर्ड को चेक करना, मैंने कॉमा सही लगाया है, मैंने इन्वर्टेड कॉमा सही लगाए हैं, मैंने सेमीकोलन सही लगाया है, या मैंने रिप्रेजेंटेशन सही करी है इसकी, ठीक है। ये तो नहीं है मैंने पहले फॉरवर्ड लगा दिया बिगनिंग में, लास्ट में बैकवर्ड इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, ठीक है। ये एक एक वर्ड को चेक करता है। इसका मकाम ही यही है मॉर्फोलॉजिकल लेक्सिकल का, कि आपकी वोकैबुलरी को एक एक वर्ड को चेक करता है। जब आप कोई सेंटेंस लिखते हो तो उसको एक एक वर्ड को
चेक करता है. लेक्सिकन ऑफ अ लैंग्वेज इज इट्स वोकैबुलरी दैट इंक्लूड्स इट्स वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन. ठीक है, जितने भी आप सिंबल्स यूज कर रहे हो, जितने भी आप स्पेशल से आपने ब्रैकेट सही लगाए हैं, इन्वर्टेड कॉमा, सेमीकोलन सही लगाए हैं या नहीं. मॉर्फोलॉजिकल डिपिक्ट, एनालाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स का स्ट्रक्चर सही है या गलत है. इट इन्वॉल्व डिवाइडिंग अ टेक्स्ट इनटू पैराग्राफ, वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस. ठीक है, पैराग्राफ्स को सेंटेंसेस में डिवाइड कर देता है, सेंटेंसेस को वर्ड्स में डिवाइड करके एक एक को चेक करता है. Is it clear to all? Lexical analysis, I am clear to all? समझ में आ गया लेक्सिकल एनालिसिस? बच्चे समझ में आ गया या नहीं? एक बार और बता दीजिए. मैम एनएलपी के फुल फॉर्म बता दो, बच्चे अलग अलग बता रहे हैं रिजल्ट. नेचुरल लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. हाँ ठीक है मैम, दो बच्चे अलग बता रहे थे मुझे. ठीक है, आप इसका लेक्सिकल एनालिसिस का मतलब क्या है. अब जैसे सपोज करो जोहन ईट्स फ्रूट्स. ठीक है, उसके बाद मैंने फुल स्टॉप लगा दिया. जोहन ईट फ्रूट्स को मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा. ठीक है, तो ये चेक करेगा कि मैंने, ये क्या करेगा, सारे सेंटेंस को तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा. ठीक है, फिर उसके एक एक वर्ड को चेक करेगा कि इन्वर्टेड कॉमा सही लगाया है, जोहन सही लिखा है, खा ईट सही लिखा है, और उसके मतलब उसके स्पेलिंग करेक्शन करेगा. ठीक है, जब आप प्रोग्राम करते हो, ठीक है, आपने C++ में प्रोग्राम किए हैं, तो नीचे एरर आ जाता है ना कि ये सही नहीं लिखा. जब आप प्रोग्राम करके रन करते हो, कंपाइल नहीं करते, कंपाइल, तो उसमें नीचे एरर आ जाता है आपके पास कि ये सही नहीं लिखा. तो वो किसका काम होता है, लेक्सिकल एनालिसिस का. अब आया समझ? हाँ जी बच्चे, समझ में आया? तब आगे चलूं. यस मैम. यस मैम. सेकेंड स्टेप होता है सिंटैटिक एनालिसिस. सिंटैटिक का मतलब ये होता है कि सिंटैक्स सही लिखा है या नहीं. अब मैं ये तो नहीं लिख सकती सोनू मैंगो ईट्स. ठीक है, ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना. सोनू मैंगो ईट्स, ये अलग अलग वर्ड्स हैं. सोनू अलग है, मैंगो अलग है, ईट्स अलग है. तो ये सिंटैक्स चेक करता है, मतलब सेंटेंस बनाएगा. सोनू ईट्स मैंगो, सोनू ईट्स एप्पल. ठीक है, सिंटैटिक का मतलब क्या होता है, सेंटेंस को बनाना, क्रिएट द सेंटेंस. ठीक है, आपने C++ प्रोग्राम्स करे हैं, उसमें आपने सिंटैक्स पढ़े हैं. ठीक है, ये तो नहीं है पहले कॉमा लिख दोगे फिर ब्रैकेट लिख दोगे. ये हमेशा आप जब सिंटैक्स लिखते हो, लाइक इंट आई, इंट के बाद वेरिएबल देना, ये तो नहीं है वेरिएबल के बाद इंटीजर लिख रहे हो. तो ये किसका काम होता है, सिंटैटिक एनालाइजर का. ठीक है, सिंटैक्स कंसर्न द प्रॉपर ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड इट इफेक्ट्स ऑन मीनिंग. ठीक है, इसका काम ही ये है कि एक प्रॉपर फॉर्म में हमें इसको सेंटेंस वर्ड्स को इकट्ठा करके एक सेंटेंस बनाना. which involves the analysis of the words in a sentence to depict the grammatical structure of the sentence. ठीक है, लेक्सिकल वोकैबुलरी चेक करता है, ये आपका ग्रामर चेक करता है. is, am, I, whatever it comes. ठीक है, the words are transformed into structure that shows how the words are related to each other. जो पहले हमारे पर वर्ड्स थे लेक्सिकल में, वो सिंटैटिक्स में क्या करते हैं, एक दूसरे वर्ड्स को इकट्ठा करके एक सेंटेंस बनाता है कि कैसे आपस में रिलेट कर रहे हैं. दिस इज द वर्क ऑफ योर सिंटैटिक एनालाइजर. नेक्स्ट कम्स टू सिमेंटिक एनालिसिस. सबसे पहले वर्ड चेक हुए, फिर सिंटैक्स, सेकंड में सिंटैक्स एनालाइजर ने सेंटेंस क्रिएट किए. अब आता है सिमेंटिक एनालिसिस.
सिमेंटिक एनालिसिस क्या करता है? सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंगफुल। जो आपने सेंटेंस बनाया है वेदर इट इज मीनिंगफुल और नॉट, ये मीनिंगफुल सेंटेंस है या नहीं। सिमेंटिक कंसर्न बेसिकली द वर्ड्स, phrases and sentences. This abstract the dictionary meaning or the exact meaning from context. ये डिक्शनरी से चेक करता है कि इसका मीनिंग सही है या नहीं है। Colorless blue idea. This would be rejected by the analyzer as colorless blue does not make any sense together. ये कोई सेंटेंस बन रहा है? कोई सेंटेंस बन रहा है ये? कलरलेस ब्लू आइडिया, दिस इज, इसका कोई मीनिंग है? नो मीनिंगफुल नहीं है। नो मीनिंगफुल सेंटेंस, राइट। तो ये सिमेंटिक क्या करता है? उस सेंटेंस का मीनिंग निकालता है, ये क्रॉस लगा देगा, रिजेक्ट कर देगा उसको अगर मीनिंगलेस सेंटेंस बनाया है। उसके बाद आता है डिस्कोर्स इंटीग्रेशन। डिस्कोर्स इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? सपोज सोनू वांटेड ही फाइंड दिस, तो ही किसको रेफर कर रहा है? सोनू को। मतलब सेकंड, मतलब फर्स्ट सेंटेंस के बाद हमारे पास सेकंड सेंटेंस क्या आना चाहिए? डिस्कोर्स इंटीग्रेशन, मतलब ये इंटीग्रेट करता है, इंटरप्रेट करता है फर्स्ट सेंटेंस को सेकंड सेंटेंस। जैसे कि मैं कहती हूँ फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो सेकंड समझ में आएगा, सेकंड पढ़ोगे तो थर्ड आएगा, थर्ड पढ़ोगे तो फोर्थ आएगा। ये किसका काम होता है? डिस्कोर्स इंटीग्रेशन का। ठीक है, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ। मतलब सेंस ऑफ द कंटेंट, कि सेंस बन भी रही है या नहीं बन रही। The meaning of any single sentence depends upon the sentences that precedes it, and also it invokes the meaning of the sentences that follow it. Example है, the word it in the sentence she wanted it depends upon the priori discourse or context. वो she wanted it क्या है? हमें कुछ नहीं, जो it है वो इंडिकेट कर रहा है, इससे पहले कोई सेंटेंस होएगा she, मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है? शी को। इज इट क्लियर टू यू ऑल? डिस्क्लोजर का पता लग गया या नहीं? हाँ जी स्टूडेंट, डिस्क्लोजर का पता लग गया या नहीं? यस मैम। लास्ट आता है फाइनल pragmatic analysis. Pragmatic analysis, it is the totally conclusion of your communication. जो आपने वर्ड्स चेक किए, उसके बाद उस सेंटेंस बनाया, उसका मीनिंग निकाला, उसको लिंक किया, ये सारा कंबाइन करके आपको एक आउटपुट थ्रो करता है। ठीक है, pragmatic concerns the overall communicative and social context and its effects on interpretation. हमने कैसे इंटरप्रिटेट किया आपस में। It means abstracting or deriving the purposeful use of the language its situation. हमने जो इंटरप्रिटेट किया वो पर्पसफुल है या नहीं है, उसको एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आउटपुट थ्रो कर देता है। Importantly, those aspects of language which require word language knowledge, ये नॉलेज जो वर्ड को नॉलेज रिप्रेजेंट करते हैं उसको एक्सप्रेस करता है। The main focus on what was said is repeated on what it actually means. Example, close the window should have been interpreted as a request rather than sorry. Rather than an order. हम एक ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं बजाय कि एक ऑर्डर दे रहे हैं। नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया? All of you clear about natural language understanding and its steps?
All of you clear about natural language understanding and its steps? Next comes to, हाँ जी clear है या नहीं? Yes or no? Yes, ma'am. Next comes to natural language generation. ये क्या करता है? What I told about natural language generation, it gives the output which you gave in the natural language understanding. It is the process of constructing natural language output from non-linguistic input. Means conversion of unstructured data into structured data. ठीक है? What are Yes, the ma'am. parts of NLG? Disclosure panel. What will be generated? Which sentences? Service realizer, which realize a sentence from its internal representation. Lexical selection, selecting the correct word describing the concept. मतलब ये क्या करता है? डिस्क्लोजर प्लानर क्या करता है? सेंटेंस को जनरेट करता है, किस फॉर्म में सेंटेंस होना चाहिए. सर्विस रियलाइजर क्या करता है कि अपनी इंटरनल नॉलेज को कैसे प्लान करना है, हाउ टू प्लान अवर सेंटेंसेस. लेक्सिकल सिलेक्शन क्या करता है? नॉलेज बेस्ड रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट कम्स टू टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ एनएलपी. फर्स्ट इज मशीन लर्निंग. What is machine learning? Means how our machine will learn our things. अब मैंने एलिजा बना दी या कोई रॉबोट बना दिया, उसके अंदर मेरे को कोई सॉफ्टवेयर तो बनाना पड़ेगा ना, किसी लैंग्वेज में, पाइथन में या किसी में, कि वो वैसे ही रिवर्ट करे. अब आपकी ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर इस तरह का सॉफ्टवेयर किया हुआ है कि वो क्लीन करेगा, कोई और काम तो नहीं करेगा, वो बर्तन तो नहीं धो देगी वॉशिंग मशीन. Is washing machine works your dishwasher? Nothing else. Means जो काम उसमें इंटरप्रिटेट कर दिया मैंने, वो वही काम करेगा. ठीक है? तो मशीन लर्निंग इस तरह का हम करते हैं. The learning procedure used during machine learning automatically focuses on the most common cases, whereas when we write rules by hand, it is often not correct at all, concerned on human errors. ठीक है? इसका मतलब ये है मेरी मशीन कैसे समझ रही है और वो कैसे आउटपुट दे रही है. ठीक है? अगर मैं वॉश का बटन दबा रही हूँ मशीन में तो इट विल वॉश क्लोथ, नॉट स्पिन. अगर मैं स्पिन दबा रही हूँ तो वो स्पिन करेगा. ऑटोमेटेड कॉफी मशीन्स हैं, ऑटोमेटेड डिश वॉशर्स हैं, देयर आर सो मैनी. नेक्स्ट इज योर स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस. स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस क्या होता है? ऑटोमेटिकली किसी चीज को कन्वर्ट करना जिसके बारे में हम फैमिलियर भी नहीं होते. ठीक है? अब कोई वॉशिंग मशीन है, वो फैमिलियर तो नहीं है कि मैं कर रही हूँ या कोई और कर रहा है. कंप्यूटर को किसी के बारे में पता तो नहीं है ना कि लवीना मैम कर रहे हैं, कविता मैम कर रहे हैं, पाठक सर कर रहे हैं या कोई और सर, कुलदीप सर कर रहे हैं. किसी को पता नहीं है उसको. He doesn't know about any person or name. उसने अपना काम करके देना है. तो that comes under statistical inference. इसको हम कहते हैं इंटेलिजेंट सिस्टम जनरेट करना. टेक्निक्स एंड मेथड्स. इनपुट डेटाबेसेस एंड ट्रेनिंग डेटा. मींस ये डेटाबेसेस, सपोज कॉलेज का मैंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया. ठीक है? मैं चाहती हूं एग्जाम्पल, मैं नक्षत्र की इंफॉर्मेशन चाहती हूँ. नक्षत्र कौन से सेमेस्टर में है, उसका नेम, रोल नंबर, फादर नेम, फोन नंबर, एड्रेस, उसके कितने मार्क्स आए हैं, मैं इंफॉर्मेशन रिट्रीव करना चाहती हूँ. तो मैं क्या करूंगी? डेटाबेस में उसका डेटाबेस पड़ा है, एक सॉफ्टवेयर में जाऊंगी, उसकी डिटेल्स एंटर करूंगी, बैक साइड पे उसकी क्वेरी लग रही है डेटाबेस में, तो मेरे को उसकी इंफॉर्मेशन एक टेबल के फॉर्म में डिस्प्ले कर देगा. ठीक है? उसकी डिटेल में.
तो ये बताता है हम डेटाबेस से इनपुट जो दे रहे हैं ट्रेनिंग डेटा कैसे उसे रिट्रीव कर रहे हैं इंफॉर्मेशन के सिस्टम बेस्ड ऑन ऑटोमेटिकली लर्निंग द रूल्स कैन बी मेड एंड एक्यूरेट एंड सप्लाइंग इंफॉर्मेशन टू अस. Next comes to NLP versus computer language. अब बच्चे मेरे को एक डिफरेंस बताओ. मैंने इतना पढ़ा दिया. नेचुरल लैंग्वेज वर्सेस कंप्यूटर लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है? नेचुरल लैंग्वेज जो हम बोलते हैं और जो कंप्यूटर लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझते हैं 110 के फॉर्म में, और नेचुरल लैंग्वेज हम जो हिंदी इंग्लिश जो भी बोलते हैं अपना. ठीक है, और बताओ. और क्या अब इसे दिस इज योर असाइनमेंट. ठीक है, राइट at least 10 differences between natural language versus computer language and how ambiguity किस में होती है किस में नहीं होती है. ठीक है, ये आपने मेरे को 5 to 10 differences लिख के देने हैं कल. Now what is the future scope of NLP? What is the future scope of NLP? NLP का future scope क्या है? हम क्यों बना रहे हैं NLP? What is the future scope of NLP? ये भी लिख के लेके आना है. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन. हम लिख के कहाँ से लाना? अभी मेरा PDF भेजे है क्या? एक मिनट, 1 second, होल्ड ऑन.